Right, thank you so much for the introduction and I'm so glad आपके ऑफिसेज इतने ऑफिसेज हैं इन हाउस सब कुछ कर रहे हो एंड आई होप कि हमें कनाडा के लिए अच्छे एप्लीकेशंस और अच्छे नंबर्स मिलेंगे particularly for MSBU from your side. So let me introduce myself. My name is Gagandeep Kaur and after marriage because recently एक साल हो गया वैसे शादी को, so I'm Gagandeep Kaur Vyas. So yes, so that's the reason मैंने आपको बताया कि I'm to Vyas. So I'm representing Mount St. Vincent University here in India. So I hope you guys have bit idea about what MSVU is. We are located in Halifax, Nova Scotia. So I'm going to run a quick presentation for your reference. So एक बार आप उस चीज को go through कर लीजिएगा. In case you have any query, any doubt, कुछ भी anything, so we can have it after the presentation we can discuss जो भी आपके queries and questions होंगे आप note down कर लीजिएगा. So I'm going to share the screen and एक presentation मुझे बता दीजिएगा if you would be able to see. आपको दिख रहा है ना presentation? जी मैम। यानी मैम आपकी स्क्रीन दिख रही है, अभी तक पीपीटी नहीं स्टार्ट हुआ है, पर एटलीस्ट आपका ये दिख रहा है हमें। अभी देखिए बिकॉज मुझे वो विजिबल हो रही है, यहाँ पे हो गई नहीं है मैम, ऊपर। नहीं हुआ है हमें। मैम आप एक बार फिर से स्क्रीन शेयरिंग बंद करके स्टार्ट करिए तो शायद हो जाएगा। Just a minute, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। अभी दिख रहा है आपको? यस मैम। So, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, MSVU is located in Halifax, Nova Scotia. So we are a public university. We are not the new university. We are quite old, right? So we established in 1873. So पीछे in 23, अभी 23 ही चल रहा है. So we celebrated 150 years. So इस यूनिवर्सिटी को 150 years हो गए हैं. तो काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है और पब्लिक यूनिवर्सिटी है. So these are contact details for application submission and query. This is my number 9909333170 in case you have any question, query, anything. So you are most welcome to contact me. I already mentioned my name is Gagandeep. I'm International Recruitment Manager for Mount St. Vincent University. India1@msvu.ca ID belongs to me. कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हो, दो आईडीज पे भेजना है। एक होती है India@MSVU. इंडिया आईडी इज पर्टिकुलरली फॉर एडमिशन. सो हमारा जो एडमिशन टीम है उनके पास इंडिया आईडी रहता है, और अगर मेरा आईडी कॉपी जब मेरे आईडी 2 में रहता है, सो आई कैन लुक आफ्टर ऑल द एप्लीकेशंस विद देम. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट यूनिवर्सिटी. As already mentioned, we are quite old university, 150 years old public university है, located in Halifax, Nova Scotia. What Nova Scotia is? Nova Scotia is one of the Atlantic province in Canada. बहुत छोटी सी province है, where population is around 5 lakh. It's not more than 5 lakh. So उससे कम ही population है Nova Scotia की, but it is known as Canada's smart city. सो जो हेलिफैक्स है कनाडा की स्मार्ट सिटी है, क्योंकि वहां पर जो है एक तो कोस्टल एरिया के पास है, समुद्र के किनारे के पास है. अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा है. छोटा है, हेलिफैक्स बहुत बड़ा नहीं है, एंड इवन नोवा स्कॉशिया बहुत बड़ा नहीं है, एंड हेलिफैक्स इज अ कैपिटल सिटी. सो इसलिए जो एक लोग ट्रैवल करते हैं, सब चीजें करते हैं, वो हेलिफैक्स में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर लोकेशंस इन नोवा स्कॉशिया. सो द पीपल ओवर देयर आर वेरी वेलकमिंग, द एनवायरनमेंट इज क्वाइट सेफ, कुछ ऐसा क्राइम का ज्यादा नहीं है वहां पे.
I'm not able to. Okay, it's working. Okay, why MSVU? A degree with difference. अगर कोई बात करे कि MSVU में क्यों जाना है, why MSVU? So I must say average first year class size is around 20 to 23 students. So वहाँ पे जो class size है बच्चों का बहुत कम रखते हैं पहले साल में, just to ensure कि बच्चे को अच्छी qualification मिले, बच्चा अच्छे से उस environment में जो जेल कर जाए, अच्छे से घुल मिल जाए सबके साथ. And we have 4,300 students from 77 different countries, right? Next is cutting edge research opportunities. What does this mean? We have master degree options with research opportunities. In case any of the student wishes to go for research opportunities, so directly going for PhD, because it's not that possible to get enrolled for PhD. So we have master's program by research as well for them that will lead to further PhD programs. So work experience term in every undergraduate program. So we offer work experience term in terms of co-ops, in terms of internships in every undergraduate program, be it be diploma or a bachelor degrees. Tuition fees are really affordable. So we are into very affordable tuition fees. Okay, and the slide shows the on-campus accommodation. So this is one of the another USPs, or you can say that the एक जो facility बच्चे को मिलती है, that we have on-campus accommodation for the students. So in case कोई बच्चा आपका ऐसा है जैसे after 12th कुछ parents concern होते हैं particularly for girl child कि हाँ जी रहने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे क्या चीजें हैं, so don't worry, we have on-campus accommodation for them. So अभी रिसेंटली मैंने अपने लिंक्डइन पे, अगर आप मेरे नेटवर्क में होंगे तो देखा होगा कि मैंने ये फोटो अपना जो रेजिडेंस की वीडियो है मैंने वो शेयर करी है. दी विर्चेस जो है रेजिडेंस, मैंने आज उसका वीडियो शेयर किया है. वहां पे ये क्या फैसिलिटीज मिलती हैं बच्चे को, कितना बड़ा है, ऑल द थिंग्स. ठीक है. सो इसमें एक अकोमोडेशन में एक बेनिफिट ये है कि हम सिंगल ऑक्यूपेंसी के रूम्स होते हैं. इट इज नॉट डबल शेयरिंग, शेयरिंग पे नहीं होता है. सो एक सिंगल ऑक्यूपेंसी होती है, अपने बच्चे को अपनी प्राइवेट लाइफ मिल जाती है. एक ग्लोबल कम्युनिटी कि MSVU में वी आर नॉट जस्ट कंसर्न्ड अबाउट वन और टू कम्युनिटीज को सिर्फ यही पढ़ रहे हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर like recruiting students from different countries. Apart from that, we have 19 exchange partner over 60 countries. That means we have different programs where student has the opportunity to go to another country for one semester to in another university to get experience. जैसे हमारा BBA के प्रोग्राम्स है, बिजनेस के प्रोग्राम्स है, सो वहां पर बच्चे के पास ऑप्शन रहता है कि वो एक सेमेस्टर जो हमारे पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं डिफरेंट, जैसे स्पेन में है, स्विट्जरलैंड में है, सो वहां पे एक सेमेस्टर करके बच्चा आता है. एंड वो डेफिनेटली वो लास्ट ईयर वाले नहीं रहते, वो बीच के मे बी इन सेकेंड ईयर और मे बी इन थर्ड ईयर. सो वो ऐसा पैटर्न रहता है. So 18% of the student population is from outside of Canada. So we recruit students from outside of Canada, including India, Bahamas, China, West Africa, and South Asia. These 5 countries are the major recruiter for MSVU. We have 35,000 global alumni all over the world. Okay, learning by doing. What does this mean? This means that we have experiential learning in all the undergraduate programs. So in all the undergraduate program, which means that be it be diploma or a bachelor degree, we have internship and co-op and practicum. So these are 3 terms that we use. Just a minute. So these are the terms that we use to explain the options that we have for students. I mean, there are few programs where students go for internship. There are few programs where students go for co-ops and practicum. So इनमें difference क्या है? Difference is of duration. Internship जो होती है वो long durations के होते हैं, co-ops short term के होते हैं, practicum उससे कुछ घंटों के होते हैं. So हर एक program का different part है कि इस program में क्या मिलता है बच्चे को, right? अब arts and science. So we have 3 domains. एक आर्ट्स डोमेन होती है, एक साइंस डोमेन है, थर्ड इज द प्रोफेशनल स्टडीज. सो आर्ट्स और साइंस डोमेन में 13+ वीक की इंटर्नशिप होती है बच्चे के थर्ड ईयर में, राइट? 13+ वीक की इंटर्नशिप, तो इसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है. फिर देन वी हैव प्रोफेशनल स्टडीज. सो प्रोफेशनल स्टडीज के जो प्रोग्राम है, these programs are recognized by the professional bodies. So in programs में we offer co-op and internship terms. Co-op हो गए, internship भी रहती है, otherwise practicum होते हैं majorly इसमें.
राइट। तो उनका ड्यूरेशन रहता है, डिपेंड्स अपॉन 3 वीक्स है, 4 वीक्स है, 5 वीक्स है, जो कुछ आवर्स हैं, 200 आवर्स, 300 आवर्स, उस हिसाब से रहता है। Okay, this is the main part, academic programs that we have at MSVU. For undergraduate programs, so intakes are January, May and September. ये चीज याद रखिएगा कि जो MSVU का एक होता है ना कि यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर, सो वी आर मेजरली नोन फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। वी डू हैव मास्टर डिग्रीज, बट एक होता है कि परसेंटेज रेशो, तो वो अंडर ग्रेजुएट की ज्यादा है एज कम्पेयर टू मास्टर डिग्रीज। सो अंडर ग्रेजुएट में ऑलरेडी मेंशन वी हैव 3 डोमेन्स, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डोमेन, इसके अंडर वी हैव स्पेशलाइजेशन, साइकोलॉजी करनी है, सोशियोलॉजी करनी, हिस्ट्री करनी, मैथ्स करना, बच्चे को इकोनॉमिक्स करनी है, जर्नल स्टडीज वी हैव अंडर BA general, bachelor's of arts. Then we have bachelor's of science with majors in biology, in chemistry, in mathematics, in psychology, or in general studies, right? Then comes to the professional studies. Professional studies means already mentioned, these are the degrees, professional degrees. If student wants to go for child and youth study, so we have bachelor's of child and youth study for them. So जो ये programs हैं, these are made according to the requirement of industry. So these programs has all the content जो after completion of the study बच्चे को चाहिए to get into the job. So in programs में वो सारा content है। BBA में student has the option to go for either accounting, international option, general studies, management, marketing, non-profit leadership or strategic HR management. So this comes under और B. मैम ये प्रोफेशनल स्टडीज में यानी ये पीजी डिप्लोमा है, इसमें बैचलर्स के बाद स्टूडेंट्स जा सकते हैं? These are the bachelor degree programs. अच्छा, These are ओके, सो the प्रोफेशनल स्टडीज आर आल्सो बैचलर्स। yes, these are the bachelor degrees. Next comes to Bachelors of Public Relation. This is the most trending and hot selling program at MSVU. Public Relation का जो program है, because MSVU was the first university who introduced public relation into Canadian market. So कोई भी बच्चा अगर generic search करता है, public relations के लिए जाना चाहता है, तो mostly बच्चे की generic preference होती है public relations. So अगर आपको पता हो आज के बच्चे को ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, वो खुद ही अप्लाई करते हैं, एजेंट के पास बाद में जाएंगे, पहले वो खुद ट्राई कर लेंगे। सो डायरेक्टली स्टूडेंट्स की मुझे काफी एप्लीकेशंस आती हैं पब्लिक रिलेशंस की एंड अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन। सो अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज अगेन एक बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोग्राम है जो डायटिक्स एंड न्यूट्रिशन को अगर बच्चे ने कंटिन्यू करना है तो उसमें उनको स्पेशलाइज देता है। देन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी बच्चे के पास ऑप्शंस हैं, इसमें इंटर्नशिप के और क्या बोलते हैं प्रैक्टिकम के ऑप्शंस है बच्चे के पास टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी। सो ये जो तीनों डोमेन्स थे, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ साइंस, प्रोफेशनल स्टडी, ये तीनों बैचलर डिग्रीज हैं, 4 इयर्स के हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 2 डिप्लोमा प्रोग्राम्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। दीज आर 2 डिप्लोमास। अब इसमें एक कंडीशन है कि नॉट कंडीशन बट एक जो रिक्वायरमेंट है, जो मैं बात करती हूँ, वर्क एक्सपीरियंस लर्निंग है इन ऑल दी प्रोग्राम्स। सो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें मैंडेटरी है कि बच्चे को करनी ही करनी है, वो तभी उसको डिग्री मिलेगा, बट देयर आर फ्यू प्रोग्राम्स में देयर इज नो मैंडेटरी। अगर बच्चे को करना है ही और शी कैन ऑप्ट फॉर, अगर नहीं करना है तो वह नहीं कर सकता। जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा है, इसमें कोऑप या इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी नहीं है, अगर बच्चे को नहीं करनी वो नहीं कर सकता। लेकिन जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का डिप्लोमा है उसमें प्रैक्टिकम है, वो बच्चे को करना ही करना है, उसके बिना उसको डिप्लोमा नहीं मिलेगा। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको दैट यू कैन गाइड योर स्टूडेंट्स। लेकिन हर एक प्रोग्राम में कुछ ना कुछ हमारे पास है बच्चे को देने के लिए। Okay, these are the master degree programs. You can go through the program, but जो intake है, it is only for September intake, and September is already closed. So September 24 जब खुलेगा, then we will definitely discuss in brief, in detailed कि क्या चीजें हैं। लेकिन master degree में यही programs जैसे Masters of Education हो गया, Public Relation. So हमारे पास जितने भी programs हैं, these are related to social sciences or health science programs, arts, social sciences or health science, nothing related to engineering और आईटी। अगर आपको कोई बच्चा है ओके जिसको आईटी में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो बच्चा जो है इट इज नॉट फॉर एमएसवीयू। इसमें आपके सोशल साइंस के कभी, बिकॉज मैंने एक ड्यूरिंग माय ट्रैवल जब मैं विजिट भी करती हूँ, स्टूडेंट से मिलती हूँ, तो मैंने एक चीज देखा था, जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए हमेशा में रहता था यार उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो उनको उठा के कहीं भी
ये दे दो जब वो दे दो। बट अगर आप चेक करें जो MSW के प्रोग्राम्स है, दीज आर पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर आर्ट स्टूडेंट, सोशल साइंस स्टूडेंट। सोशियोलॉजी बच्चे ने पढ़ी होती है +2 में, उसको सोशियोलॉजी दो। पब्लिक पॉलिसी, जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, पब्लिक पॉलिसी दीजिए उसको। सो वी हैव ऑल दोज प्रोग्राम्स फॉर देम, राइट। Next, coming to admission requirements. So admission requirements are very simple and straightforward. 5 grade academic subjects we are looking for, कि बच्चे के पास 5 academic subjects होने चाहिए क्लास 12 में। पेंटिंग, म्यूजिक जो है ये academic subject नहीं काउंट होते, तो अपार्ट फ्रॉम दीज हमारे पास 5 academic subject होने चाहिए। बच्चे की ओवरऑल परसेंटेज 60% होनी चाहिए, एंड कोई भी सब्जेक्ट जो है वो 50% से बिलो नहीं होना चाहिए, right? Overall 60%, no subject below 50%। फर्स्ट लैंग्वेज में बच्चे के 55% होने चाहिए। एंड देर आर few programs where we are very specified in terms of subject, the student must have chemistry और बच्चे के पास मैथ्स। तो वो आपको प्रोग्राम टू प्रोग्राम पता चल जाएगा कि किसी प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, ट्रांसफर स्टूडेंट्स। सो वी डू एक्सेप्ट क्रेडिट ट्रांसफर्स। लेट सपोज आपका कोई बच्चा है जिसने 12th के बाद कोई डिप्लोमा करा है, और मे बी 10th के बाद 3 साल का जो बच्चे डिप्लोमास करते हैं वो डिप्लोमा करा है। नाउ ही और शी इज इंटरेस्टेड फॉर बैचलर डिग्री, एंड अगर उन्होंने कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे करा, अच्छे यूनिवर्सिटी से वो डिप्लोमा करा है, दे कैन सर्टनली गेट क्रेडिट ट्रांसफर टुवर्ड्स व्हाट दे ऑलरेडी हैव स्टडीड हियर। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे बच्चे की जो GPA है 2.0 हो ऑन द स्केल ऑफ 4, और 63 to 65% हो, एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, और जो भी उसने कोर्स पढ़े हैं उसको वो डिटेल्ड में सबमिट करने पड़ते हैं। देन हमारे जो एडमिशन ऑफिसर हैं उनको चेक करते हैं कि कितना पढ़ा है, जो हमारी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से कितना पढ़ा है। देन वो उसको उस हिसाब से कैंसिल आउट करके देख लेते हैं कि कितने हमने इनको पॉइंट्स देने हैं, कितने नहीं देने, राइट। मास्टर डिग्री के लिए GPA 3.0 है और 73% इन ग्रेजुएशन चाहिए। सो मास्टर्स की रिक्वायरमेंट हमारी क्वाइट हाई है, बट इनको हम डिटेल्ड में करेंगे जब हमारे मास्टर्स के प्रोग्राम ओपन होंगे। देन वी विल डिस्कस इन डिटेल कि मास्टर्स में और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि एवरी प्रोग्राम हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड डेडलाइंस। Okay, this is very important, the academic program policy at MSVU, very important part। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। It's not that difficult to understand, but yes, थोड़ा सा समझना है इसको, कि जितने भी हमारे मोस्टली मेजर प्रोग्राम है MSVU में, सब में हमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास कई बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं किया होता ग्रेड 12 में, तो स्टिल दे कैन अप्लाई, लेकिन उनको एडिशनल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो उनको जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में अपना एडिशनल मैथमेटिक्स कंप्लीट करते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड वो अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे देती हूँ। लेट सपोज आपके पास बच्चा है जिसने कॉमर्स करा है, जब में भी आर्ट्स का स्टूडेंट है, मैथ्स नहीं है, उसको हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में जाना है, एंड वी नीड मैथमेटिक्स इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो क्या होगा, तो वो बच्चे को हम स्टिल कर लेंगे एक्सेप्ट, लेकिन करेंगे BA जनरल स्टडीज में, बैचलर्स प्रोग्राम में, वेयर ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स इन फर्स्ट सेमेस्टर along with डिप्लोमा ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी के सब्जेक्ट्स के साथ। मतलब पहले सेमेस्टर में उसको 5 सब्जेक्ट लेने हैं, एक सब्जेक्ट वो मैथ्स का लेगा, 4 सब्जेक्ट वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी डोमेन के लेगा, राइट। अब जब फर्स्ट सेमेस्टर में वो मैथ्स कंप्लीट कर लेगा, सेकेंड सेमेस्टर में ही कैन टेक द इंटरनल स्विच टू प्रेफर्ड प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम का नाम BA जनरल स्टडीज से लेके डिप्लोमा ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी हो जाएगा। दिस इज एन इंटरनल प्रोसेस, राइट। और एग्जाम मैम ये चीज बाकी सारे प्रोग्राम्स में भी यही रहेगा, जैसे कि अगर 12th बायो स्टूडेंट है या फिर अगर वो कॉमर्स है, तो सबके साथ सेम चीज एप्लीकेबल रहेगी? सेम एप्लीकेबल रहेगी अगर उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है। बट एक चीज है, जो वेस्ट इंडिया के बेसिकली जो गुजरात साइड के बच्चे हैं, उन्होंने ना 12th में स्टैट्स पढ़ा होता है, सो स्टैट्स पढ़ा है तो वो मैथ्स के इक्विवेलेंट काउंट होता है। अगर बच्चे ने मैथ्स नहीं पढ़ा, से कॉमर्स के बच्चे बेसिकली जो आपके रहते हैं ना, उनके पास मैथमेटिक्स नहीं होता, तो स्टैटिक्स होता है, उन्होंने वो पढ़ा होता है जी। उन बच्चों को नहीं जरूरत है एडिशनल मैथ्स लेने की, वो डायरेक्टली यहाँ से ही सेम प्रोग्राम में जाएंगे, चाहे डिप्लोमा में जाना है चाहे बैचलर्स में जाना है। लेकिन जिस बच्चे के पास नहीं है मैथमेटिक्स और स्टैट्स, उनको BA जनरल स्टडीज में ही जाना पड़ेगा, एंड इंटरनल स्विच करेंगे वो प्रोग्राम को। दिस इज द ओनली पॉलिसी एट MSVU। काफी टाइम से ये पॉलिसी, सभी बच्चे ऐसे ही जाते हैं।
ओके तो मैम ये जो इंटरनली हम स्विच करते हैं अपने जो भी प्रोग्राम्स में स्टूडेंट को जाना है, तो ये इनका कोई क्राइटेरिया होता है परसेंटेज का कि इतना मेंटेन करोगे तो ही आपको ट्रांसफर मिलेगा? सिर्फ मैथमेटिक्स, सिर्फ जो देखा जाता है वो मैथमेटिक्स से देखा जाता है कि बच्चे ने मैथ्स क्लियर कर लिया जितना उनके परसेंटेज के हिसाब से कि नहीं, दैट्स जी जी ठीक है। तो और इसमें और कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ मैथ्स की कंडीशन है, क्योंकि अगर किसी दूसरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट मैथमेटिक्स की है, अनटिल अनलेस स्टूडेंट जो है वो मैथ्स की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता, उसको कंप्लीट नहीं करता, तो उसको वो नहीं जाने देंगे दूसरे प्रोग्राम में। लेकिन जब मैथ्स की रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेता है तो दे कैन मूव टू अनदर लोकेशन में। राइट? यस मैम। Just a minute. Okay, so coming to next, these are the language requirements. अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में क्या रहता है, सो वी हैव अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम्स है उसमें जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, सो वी डू एक्सेप्ट आइल्स एंड टॉयफल। ठीक है। अब आइल्स और टॉयफल के अलावा कुछ और नहीं है कि जो हम जिस चीज को बोले कि हम वी डू एक्सेप्ट। सो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में सिर्फ आइल्स एंड टॉयफल है, और आइल्स में 6.5, नो मार्क बिलो 6 चाहिए हमें। राइट, 6.5, नो मार्क बिलो 6, एंड इन केस बच्चे ने टॉयफल दे रहा है इट वुड बी 84, नो मार्क बिलो 20। क्लियर जी? यस मैम। For master degree, it is 7 not less than 6.5. Okay, apart from that, हमारे पास जो है EAP प्रोग्राम्स होते हैं, नोन एज इंग्लिश फॉर एकेडमिक प्रेपरेशन प्रोग्राम्स। इन केस के बच्चे का 6 ईच है। अभी आई डोंट नो अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस वो करा कि नहीं, जो अभी न्यू रूल आया है कि 6 ईच भी नहीं चाहिए, जो अपना भी हाई कमीशन ने करा है, कैनेडियन एम्बेसी मैम ने करा ऐसा वेबसाइट पे कहाँ लिखा है अभी तक CIC ने? इट्स इन वर्बल कम्युनिकेशन अभी जो हो रही है कि हाँ जी ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बट अगर मैं बात करूं तो हमें उस चीज का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ही 6.5 है, तो वी कैन नॉट हेल्प। बच्चे को ऑफर लेटर ही नहीं मिलेगा उससे पहले तो, राइट। लेकिन अगर आपके पास बच्चा है 6 ईच वाला स्टूडेंट्स है, और 6 नॉट लेस देन 5.5 वाला भी बच्चा है, वो स्टिल कैन टेक एडमिशन उसको। लेकिन इंग्लिश का एडिशनल प्रोग्राम लेना पड़ेगा नोन एज EAP। इसकी ड्यूरेशन है 13 वीक्स एंड फीस है 4,000। दिस इज द एडिशनल फीस जो बच्चा पे करेगा, राइट। Coming to next, scholarships and financial aid. Being a public university, we proudly make approximately 3 million scholarships and financial aids to students annually. Scholarships जो है वो guaranteed होती हैं 80% से above percentage के बच्चों को, but it is only for September intake. अभी जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं सिर्फ सितंबर इनटेक के लिए ही अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप वी हैड बर्सरी फॉर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे प्रोफाइल्स हैं, लेकिन जैसे मास्टर डिग्री के बच्चे, क्योंकि अंडर स्कॉलरशिप्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए हैं, जो मास्टर डिग्री के बच्चे हैं उनको भी यूजुअली गिव बर्सरीज। अच्छे प्रोफाइल्स हैं तो उनको बर्सरीज मिल जाती हैं अप टू $2,000। up to 300 part-time jobs on campus available हैं for बच्चे के लिए, and where student can work 12 hours per week at $13 per hour। ठीक है, तो 12 घंटे जो है एक हफ्ते में यूजली देते हैं जो ऑन कैंपस पार्ट टाइम जॉब्स हैं। बाकी डिपेंड बच्चे की किस टाइप की जॉब लगती है एंड उसको ज्यादा आवर्स वो दे पाए, बट दिस इज अ मिनिमम वो यूनिवर्सिटी जो है इन्फॉर्म करती है, जब हमारे उनके स्टैट से निकलती हैं डिटेल्स कि इतने एवरेज इतना 12 घंटे मिल रहे हैं एक बच्चे को पर वीक इन यूनिवर्सिटी में, एंड 13 आवर्स मिल रहे हैं, $13 मिल रहे हैं पर आवर। So these are the tuition fee structures. So we are at lowest tuition fees in Nova Scotia. जो 1 year की अंडर ग्रेजुएट की फीस है वो 17,000 अप्रोक्सीमेटली $17,000 से लेके 17,660 तक रहती है 1 year की ट्यूशन फीस। इन केस बच्चा रेजिडेंस लेता है, ऑन कैंपस अकोमोडेशन लेता है, इट इज $9,000 to $11,000 विच इंक्लूड्स मील प्लान। तो बाकी इसमें सेग्रीगेशन हो जाता है कि
बच्चे ने किस टाइप की अकोमोडेशन लेनी है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वी हैव 3 टाइप ऑफ अकोमोडेशंस, सो डिपेंड अपॉन बच्चा कब अप्लाई कर रहा है, कौन सी अकोमोडेशन अवेलेबल है। कमिंग टू नेक्स्ट, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है जो बच्चा पे करता है, इट इज मैंडेटरी, जो बच्चा पे करता है $654 पर ईयर। एक बहुत अमेजिंग ऑफर है एमएसवीयू सिबलिंग डिस्काउंट। सो व्हाट डज दिस मींस, इन केस आपका कोई बच्चा है जो ऑलरेडी एमएसवीयू में पढ़ रहा है, उसका सिबलिंग जो है वो ज्वाइन करता है उसको कमिंग ईयर्स में। मान लीजिए आपका ऑलरेडी बच्चा 3rd ईयर में है, अब उसका भाई बहन 1st ईयर में ज्वाइन करेगा, तो उसको डिस्काउंट मिलता है। जो एक्चुअल ट्यूशन फीस होती है उसका 50% हो जाएगा, ठीक है, तो एक बच्चे का 50% हो जाएगा। So these are the list of open programs जो वैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि बैचलर्स डिग्री सारी के सारी ओपन है, डिप्लोमास ओपन है, बैचलर डिग्रीज ओपन है। These are the graduate programs, लेकिन वो सितंबर 24 में ओपन होंगे। These are the documents that we require for application form, mark sheets of grade 10 and 12, एडमिट कार्ड ऑफ ग्रेड 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स अगर हैं तो उसको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, आईएलटीएस टीआरएफ चाहिए और पासपोर्ट के बायोपेज। सो दीज आर ओनली दी 5 रिक्वायरमेंट्स जो आपको अंडर ग्रेजुएट के एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए चाहिए, नॉट मोर देन दैट, ठीक है जी। सो अभी एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपने वो फिल करना है, बच्चे का 10th 12th देना है, आपका सीबीएसई का बच्चा है उसका आप एडमिट कार्ड ले लेंगे ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए, रिजल्ट, आईएलटीएस टीआरएफ और बायोपेजेस। सो कंडीशनल अगर ऑफर लेटर अप्लाई करना है, वी डू एक्सेप्ट कंडीशनल एप्लीकेशन, चाहे वो मार्कशीट पे है या आईएलटीएस पे है, मतलब बच्चे का आईएलटीएस नहीं हुआ जिसका रिजल्ट में ऊपर नीचे है, मार्कशीट नहीं आई, तो बच्चा कैन स्टिल अप्लाई ऑन द कंडीशनल बेसिस, राइट। This is how to apply. So MSVU का याद रखना, MSVU is कभी किसी पोर्टल पे नहीं है, किसी भी पोर्टल पे नहीं है, MSVU के एप्लीकेशन उसकी आईडी से ही सबमिट होते हैं। सो दीज आर द आईडीज जिन पे आप एप्लीकेशन आपको फॉरवर्ड करना रहेगा, india@msvu.ca एंड India1। इंडिया इज पर्टिकुलरली मतलब एक कॉमन आईडी है हम सबका, जो एडमिशन देखता है कंसर्न पर्सन उसका है, और इंडिया आईडी है, India1 आईडी जो है वो मेरे पास रहता है, इसको मैं टेक केयर करती हूँ। एप्लीकेशन फीस जो है वो अंडर ग्रेजुएट की है कैड $40 एंड फॉर ग्रेजुएट एप्लीकेशन मास्टर डिग्री की है $50, राइट। सो इसमें एक और है कि जो एप्लीकेशन फीस पेमेंट करते हैं आप, ये आप लोग खुद से पे करेंगे जब आपको लिंक एक मिल जाता है, मतलब एप्लीकेशन पहले सबमिट होता है, बच्चे का आईडी बनता है, आपको लिंक मिलता है पेमेंट करने के लिए, तो आपके पास जब लिंक आता है आप उस लिंक पे क्लिक करके बच्चे का एप्लीकेशन फी पेमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। मैम एक मिनट, मैं यहाँ पे मेरी बैक ऑफिस को ज्वाइन करना चाहूंगी। चिराग भाई, धवल भाई, આમાં છે ને તે MSVU માં એપ્લિકેશન્સ કોઈ પોર્ટલ થી નથી થતી, એપ્લિકેશન ઈમેલ થી થાય છે। તો એપ્લિકેશન ફોર્મ અને ડોક્યુમેન્ટ્સ આ જે ઈમેલ એડ્રેસ છે India@MSVU અને India1@MSVU આના પર સેન્ડ કરવાનું। પછી લોકો આઈડી ક્રિએટ કરી અને આપણને આ પેમેન્ટ લિંક આપશે, પછી આપણે એની એપ્લિકેશન ફીસ આ લિંક થ્રુ પે કરાવવાની છે, સેમ એઝ ટ્રિનિટી વેસ્ટર્ન યુનિવર્સિટી। ક્લિયર? ઓકે डन जी। जी। सो एक इसमें रहता है प्री स्क्रीनिंग राउंड। सो इसमें क्या रहता है प्री स्क्रीनिंग में कि मान लो आपने एप्लीकेशन भेज दिया, आपने मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया कि एप्लीकेशन हो गया है, आप देख लीजिएगा। सो जो एडमिशन कंसर्न पर्सन है ना, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले वो प्री असेसमेंट करके बच्चे को एक कॉल करते हैं जस्ट टू कंफर्म देयर डिटेल्स की उसके ईमेल आईडी, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो करेक्ट हैं, बच्चे को पता है वो कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है। एक जेनरिक एक टॉपिक, नॉट इंटरव्यू बट एक जेनरिक कॉल होती है एडमिशन ऑफिसर की बच्चे को। सो आप बच्चे को बता के रखें पहले कि तुम्हारा इस प्रोग्राम में हम अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे को अवेयर हो कि वो कौन से प्रोग्राम में जा रहा है, कौन सी इंटेक में अप्लाई कर रहे हैं, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कौन से हैं, ईमेल अगर आपने खुद से उसका बनाया है तो उसको पता हो कि मेरा इसी ईमेल से एप्लीकेशन जा रहा है। सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स जो आप चाहिए हो, राइट। एनी क्वेश्चन? जी मैम, मैं मेरी टीम को थोड़ा बताना चाहूंगी। आप प्रोग्राम स्लाइड करेंगी एक बार?
जी ये मैम समझ मास्टर वाला एक बार करिए, मास्टर वाला मैम। ये है हाँ जी, ओके। तो टीम, मुझे आप लोगों को बताना है ये यूनिवर्सिटीज अपने लिए कौन से क्राउड के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूं। जैसे अपने पास होम साइंस का क्राउड आता है, ठीक है, जिसमें ज्यादातर कौन से मेजर्स होते हैं उनके पास होते हैं, एक तो ये फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस। अपनी यहाँ पे तो जो एमएस यूनिवर्सिटी है उसकी फैकल्टी का नाम ही फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस है, ठीक है। तो एमएस यूनिवर्सिटी से कोई भी स्टूडेंट आए होम साइंस वाले, तो उनका ये फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस वालों को आप फैमिली स्टडीज एंड जेरोंटोलॉजी या वुमेन एंड जेंडर स्टडीज है ये वाले प्रोग्राम दे सकते हो। नर्सिंग वालों को हम ये फैमिली स्टडीज एंड जेरोंटोलॉजी दे सकते हैं। पब्लिक रिलेशन का ऑलरेडी हमारे पास क्राउड आ रहा है, जो यहाँ पे जर्नलिज्म का होता है, पॉलिटिकल साइंस का होता है, जो पीआर के लिए जा रहा है, ठीक है। फिर होम साइंस में एक और मेजर होता है फूड एंड न्यूट्रिशन, तो उनका हम ये अप्लाइड फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन में अप्लाई कर सकते हैं। एमएड वाले हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनका हम ये एमएड में कर सकते हैं। स्कूल साइकोलॉजी में साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स का कर सकते हैं। दूसरा मैम, मैंने ये आपकी एक्सेल्स देखी हैं, तो 12+3 एजुकेशन भी यहाँ पे चलाते हैं, पर शायद रिक्वायरमेंट उसमें थोड़ी हायर है, राइट मैम? अभी रिसेंटली, क्योंकि मैंने अभी मास्टर पे फोकस नहीं करा, इसके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को मैंने इतना एलेबोरेट नहीं करा, क्योंकि अभी एप्लीकेशंस ले नहीं रहे थे हम मास्टर्स की, क्योंकि जनवरी इनटेक में मास्टर्स नहीं है। मैम मेरे पास एक सीट पड़ी है, वो मैं आपको दूंगी एमएस वीयू की, तो उसमें लिखा है क्लियरली इसमें दो चलाते हैं, 12+4 भी चलाते हैं, 12+3 भी चलाते हैं। तो अपने 12+3 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो डेफिनेटली एलिजिबल हो जाएंगे। सिर्फ चैलेंजिंग ये रहेगा कि इनके बैंड्स हो 7 नो लेस देन 6.5, बाकी अपने स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें बताऊं आपको, जो रीजन मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन जो लास्ट टाइम हमारा सितंबर अभी गया, ये वाला सितंबर जो 23 वाला सितंबर गया है, जो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, उसमें जो एप्लीकेशंस हुए थे, तो अभी चेंज ग्रेजुएट एडमिशंस में ये हुआ है कि वो 4 इयर्स का ही डिग्री ले रहे हैं, 3 इयर्स का नहीं लिया उन्होंने इस साल। ओके। दिस इज अ न्यू अपडेट कि अभी 3 साल का नहीं उन्होंने एक्सेप्ट। जैसे बीकॉम वाले बच्चे भी थे, बीकॉम करा हुआ था, बहुत अच्छा प्रोफाइल था। जब बीबीए वाले बच्चे भी थे, अगर वो बीकॉम वाले नहीं, ये स्पेसिफिकली हमारे पास इसी के स्टूडेंट्स है, जिसने जैसे बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन किया है, यहाँ पे बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस किया है। तीन आप तीन एक साल बार का मैम है पूछ यहाँ पे। लीजिएगा, क्योंकि तीन मेरे तीन ख्याल से साल रिक्वायरमेंट चेंज है। 12+3 डिग्री होती है तो उनको परसेंटेज ज्यादा चाहिए, और 12+4 में उनको परसेंटेज कम चाहिए। मैं एक बार दोबारा से डेफिनेटली चेक करूंगी, क्योंकि मैम मेरे एक पास मिनट, हाँ मेरे तो। पास एक एक्सेल पड़ी है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरे पास ये एक एक्सेल है, जिसमें, हाँ जी मैम दिख रहा है मैम आपको? जी 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 जी। हाँ, मैं जिसमें ना ये दो तरह के देखिए प्रोग्राम है। मास्टर्स ऑफ अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन 3 इयर्स डिग्री, फिर मास्टर्स ऑफ साइंस अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन 4 साल का डिग्री चाहिए। वैसे दो प्रोग्राम्स हैं जी ये जी। मास्टर जी। बट अगर आप देखेंगे, ये जो एडमिशन, ये पुराना क्राइटेरिया है। अभी के लिए अगर परसेंटेज भी आप देख रहे हो ना, सो वी रिक्वायर 73%, ओवरऑल 73% रिक्वायरमेंट हो गई है। अच्छा ठीक है मैम, ओके। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, बट फिर भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो 4 इयर्स की डिग्री वाले भी कंसर्न है, क्योंकि मुझे अभी याद है कि लास्ट ईयर जब सितंबर हमारा ओपन हुआ था, सितंबर की एप्लीकेशन ना फरवरी में क्लोज हो गई थी, इस फरवरी में तो मैम क्लोज हो गई इसमें थी। फिर आपकी यूनिवर्सिटी में तो हम जैसे गुजराती क्राउड है, अगर अंडर ग्रेजुएट को टारगेट करते हैं तो मैथमेटिक्स तो है नहीं, तो उस केस में 12th कॉमर्स का आपने ये बताया कि स्टैटिस्टिक चल जाएगा, और 12th पीसीबी वाले बच्चे जो है वो पहले आर्ट्स में एडमिशन लेंगे, फिर मैथमेटिक्स पढ़ के वो लोग चेंज कर पाएंगे। लेकिन उसमें ये रहेगा कि उसको जो बच्चा पढ़ेगा ना वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ेगा। अच्छा, और उसका मैम एडमिशन कौन सा आएगा? देखो एडमिशन एडमिशन पे क्या लिख के आएगा, जैसे किसी ये को जनरल करना है स्टडीज, न्यूट्रिशन? नहीं नहीं, उसको जो आएगा वो बीए जनरल स्टडीज ही आएगा। उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अगर आप हमारा बीए जनरल स्टडीज का प्रोग्राम चेक करेंगे ना वेबसाइट पर भी, इट इज नॉट ए डिग्री। बीए जनरल स्टडीज कोई डिग्री नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों को दे देते हैं हम लोग जिनका कोई मेजर डिफाइन नहीं है, बच्चा अपनी मर्जी से प्रोग्राम पढ़ता है उसमें। तो एक प्रोग्राम मैथ्स का हो गया, तो 4 सब्जेक्ट्स वो लेगा जो उसने आगे जाके पढ़ना चाहता है। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो 4 सब्जेक्ट वो साइंस डोमेन, अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन डोमेन से ही लेगा। जब उसका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स उसका प्रोग्राम का नाम भी चेंज हो जाएगा टू बैचलर्स ऑफ अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है मैम, ओके। तो बच्चे का कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट यस, प्रोग्राम का जो नाम इनिशियली रहेगा वो बीए जनरल स्टडीज ही रहेगा। इसमें मतलब दिस इज द ओनली प्रोसेस, जब से एमएसवीयू इंडिया से रिक्रूट कर रहा है, दिस इज द ओनली प्रोसेस हमारा ऐसे होता है। तो एम्बेसी को पता है कि जो बीए जनरल स्टडीज है ये कोई डिग्री नहीं है एमएसवीयू की, ये इनका एक पाथवे है मैथमेटिक्स का, है ना। एनी अदर क्वेश्चन, कुछ आपको और कंफ्यूजन है तो? आप म्यूट हैं डियर। नहीं मैम, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। टीम, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? मैं 1 मिनट, कॉल आ रही, मैं कॉल पिक कर लूं जस्ट, है ना, 1 मिनट। जी मैम। अंकित, तुम लोग सारे काउंसलर जो है ना, वो गूगल मीट चालू कर दो ना, यूसीडब्ल्यू का ट्रेनिंग फटाफट जाओ। राइट जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, बाय 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 बाय। ओके, सारे काउंसलर जो है, मैंने नॉलेज ग्रुप में लिंक भेजा है, वो ट्रेनिंग ज्वाइन करें।